Done. Good evening to everybody here. Good evening to everyone here and people who will be joining me online. I welcome you to join me, and I'm excited to share the word with you. And it's great fun, discussing the word of God and learning from it, sleeping it in and getting healed from it. As you saw a testimony, beautiful testimony that an old friend of mine, her husband, got healed of complete blindness in one eye in the Bible study. So God can heal you anywhere. Expect your healing and receive the word of God and be healed. While hearing the word of God, you will get healed. शुभ संध्या उन सबको जो यहाँ बैठे हैं और जो मुझसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं। ये बहुत ही अनोखा अनुभव है जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसमें सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, वो आपके अंदर रहता है। जैसे आपने एक गवाही सुनी कि हमारे एक मित्र उनको बाइबल स्टडी में सिर्फ वचन सुनकर उनकी आंख की रोशनी वापस आ गई। तो परमेश्वर आपको कहीं भी चंगाई दे सकते हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप ये जैसे जैसे वचन सुनते जाएंगे परमेश्वर आपको चंगा करना शुरू कर देगा। Welcome, Rani Bhatti, welcome, Monica, welcome, Bhavna, welcome, Sita, welcome, Deepa, welcome, Bhavna, welcome, Sophia Khan, welcome, Pastor Nayak Sahab, welcome, Marisha, welcome. कितने लोग जुड़ रहे हैं? Then, listen to the message. Young people, middle-aged people, old people. You can assess your life and why you are a success or why you are not a success. If you count 5 people which are around you most of the time. सभी लोग चाहे वो युवा हो या प्रौढ़ हो इसको ध्यान से सुने। आप अपने जीवन में सफलता को माप सकते हैं उन 5 लोगों को गिनकर जो आपके आसपास इर्द गिर्द हर वक्त रहते हैं। Just think for a minute which 5 people you meet most days or talk.
सोचा? Now, supposing in your bedroom where you sleep, you clutter the bed and you clutter the room, you don't take out garbage from it for a long time, the room will start to stink. You will not get sleep in the night. ऐसा मान लीजिए कि आपका शयन कक्ष जहाँ पर आप सोते हैं उसको आप ठीक नहीं करते, कभी वहाँ पर हर चीज जमी पड़ी हुई है और सफाई नहीं करते अगर आप, तो कुछ दिनों में उस कक्ष से आपको बदबू आने लगेगी और आप वहाँ पर सो नहीं पाएंगे। Thank you, you are loving my voice, Pramod ji. Pray for my voice and remain strong always. Thank you. धन्यवाद करता हूँ प्रमोद जी आपका। तो we grow up and while growing up you will go through phases. I went through a phase in the 80s. Many of you were not born, when everybody was alive. In the 80s, suddenly I noticed that my language has somewhat changed. ठोक देना, क्या कर रही है? ठोक दूंगे। मैटर नहीं तो मैटर है, मैटर भी क्या है? खंबा लाओ, रोड नाच लो। तो गर्ल्स वर कॉल्ड कॉर्सेस। मैंने बहुत शरीफ आदमी था, वहाँ पे जब खाना खाने जाते थे तो बोलते थे आज न्यू पास। पिछले वाला बात से बहुत भारी पड़ गई। So, your language changes because of what? Because of the company or what you speak throughout the day. Thank God I wasted 3, 4, 5 years of my life and I stopped wasting it anymore. आपकी भाषा पर उस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे लोगों के साथ आप दिन रात उठते बैठते और साथ में रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ वर्षों के बाद मैं ऐसी संगति से छूट गया। ऐसी संगति में ना 5-6 करोड़ आने ही वाला होता है, रात को खाने के वाले। हफ्ते बाद अपन मर्सिडीज में हो गए, जब में गए तो चंपारण शैंपेन होता है, अरे भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। So the 5 people who surround you, who you talk to them most days, is what you are. वह 5 लोग जो आपको आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, वही आपके जीवन में सफलता को परिभाषित करते हैं। We will today try and find out that like we need to remove clutter, you have to sometimes remove friendships. आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको कचरा या ढेर साफ करने की भी आवश्यकता होती है, कई बार आपके जीवन में आपको लोगों को भी हटाने की आवश्यकता होती है। If I am traveling a distance of 15 kilometers with somebody, can I go home and say, yeah, we had a nice conversation, I learned something from him, we encouraged each other, it was an uplifting experience. समझ लीजिए आप किसी के साथ 15 किलोमीटर तक चलते हैं, समय व्यतीत करते हैं, तो क्या उसके साथ आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ या घर जाकर यह बोल सके कि यार मैंने कुछ नया सीखा और मुझे कुछ अपने विचारों में उन्नति प्राप्त हुई? The first thing which will guide you who to add on and who to discard is when you finish meeting a guy, are you happier? Are you uplifted? Are you thoughtful of what he said? If there is a blank, then there is no use meeting that man or woman very much. जो पहली चीज आपको समझने में मदद करेगी कि क्या आप उसके साथ मिलकर, जिससे भी आप मिले उसके साथ आपको मिलकर अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा और आप अपनी आत्मा में कोई
अनुभव कर रहे हैं या फिर आप वैसे ही हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको उस इंसान को अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। If you and I are not beneficial for each other but detrimental, then what is the point of that relationship? Like I said, if you are willing to learn, sky is not the limit. And if you are not willing to learn what I teach you, I can do nothing about it. अगर मैं और आप एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते या कोई फायदा नहीं साबित करते तो क्या फायदा है उस रिश्ते का? क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सीखने के लिए आगे आना चाहते हैं तो आकाश भी आपको छोटा पड़ जाएगा, और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तब किसी चीज का कोई मूल्य नहीं होगा। टीटू जी, दीपा जी, रिजवानी जी, पास्टर बलविंदर सिंह मसीह जी, जय मसीह की, राजेश हरीश जी, नीलू जी, प्रमोद पाटिल जी, सबका स्वागत है। सुमन गुप्ता जी, नीरज श्रीवास्तव जी, सोनू कुमार जी, जुड़ते रहिए। So the thing is, if you are not being benefited, then you're going to think again, and if you can tell that person something, and if he's willing to learn from you, and the relationship is of some consequence. Otherwise, what you do is, there's another side to it. When you find a good person who uplifts you and you uplift him, never let him go. तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप किसी से मित्रता में हैं और उससे आपको कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा, आपको कुछ प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा, तो कई बार आप उसको कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे वो कुछ सीखे। अन्यथा अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ आपको और आपको उसके साथ मजा आता है, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को आप छोड़िएगा मत। Have you seen that you meet some people and you come with a smile, or you're thoughtful, or you write something, or you say something has increased in you, and there is just, you meet a person and everything gets punctured. कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी से मिले तो आप बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आए, हो सकता है आपने कुछ अच्छा लिखा, आपको कुछ अच्छा लगा, या कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिसके बाद आपकी आत्मा ही मतलब एक धीरे महसूस करती है और आपको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। You know, when I get on a flight, I pray that the person who sits next to me will not pout. Really? जब कई बार मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ तो मैं ये प्रार्थना करके जाता हूँ कि जो मेरे बगल में बैठेगा वो ज्यादा मुझे पकाए नहीं। It helps. As many times I prayed that the seats around me will be empty and they are empty. I smile at the air hostess and tell her, give me a seat where nobody else is sitting. She gets it. So, and you sometimes get a very nice person to talk to, you discuss something and it is enlightening. क्योंकि या तो मैं कुछ सीखूं या मैं कुछ सोचूं या मैं किताब पढ़ूं, कहीं पहुंचूं, मैं अपना ठीक ठाक कुछ पहुंचूं ना। Some people are just waiting to tell you how great they are. कुछ लोग सिर्फ इस चीज का इंतजार ही कर रहे होते हैं कि वह यह बता सके कि वह कितने अच्छे हैं। मेरा एक कोट है, he was so full of himself that his face seemed to be bursting at the seams. कोई पूछे तुम क्या बताए, मैं कितना समझदार हूँ, और एंड में आपको बोले तो बोल दो। So 5 people around you decide who you are and who they are. तो कोई भी ऐसे 5 व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द हमेशा बने रहते हैं, वह इस चीज का निर्णय करते हैं कि आप क्या हैं और वह क्या हैं। You become like the people you spend most of the time. Believe me. जिन लोगों के साथ आप अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, आप लगभग वैसे ही बन जाते हैं। Thank you, Lord. Very people are getting blessed. I'm getting blessed with you. Wonderful. Proverbs 12:26. नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। धर्मी अपने पड़ोसी की
अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। In English it says, the righteous choose their friends carefully. The righteous choose their friends carefully. अंग्रेजी में इसका अनुवाद यह है कि जो लोग धर्मी होते हैं वह सोच समझकर अपने मित्रों का चुनाव करते हैं। What is righteousness? In Hindi, I don't agree with the meaning very much. The meaning of righteousness is so simple and precise. It means to be in the right standing with God. तो धर्मी का आखिर अर्थ क्या है? इसका एक बहुत ही सरल और छोटा सा मतलब है कि परमेश्वर के साथ आप जो खड़े हैं वह सही खड़े हैं और आपका दिल उसके साथ सही है। You should apply the same thing in business, relationships, friendships, and relationships. And because see, life is not made up of things. It's made up of people. You meet people, and how you deal with people will be the measure of your success. आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में, अपने कार्य में, व्यापार में, घर में, रिश्तों में इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन चीजों से नहीं बनता, वह लोगों से बनता है, और किस तरह के लोगों से आपकी मित्रता है वह आपके जीवन में आपकी सफलता को तय करती है। 1 Corinthians 15:33. कुरिन्थियों की पहली पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। Yes, sir. Good company creates character. Good character. Yes, Sharon, you're right. Why aren't you here? Okay. Do not be misled. Bad company corrupts good character. जो भी आप में खूबियां हैं ना, वो ब्लड होती जाएंगी। जो भी आप में अच्छाइयां हैं, उनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जो कुछ भी आप में अच्छा है, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। You understand? You want to sleep with a snake, expect to be bitten. जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे आपका स्वभाव ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप एक सांप के साथ सोएंगे तो फिर आपको यह मान लेना चाहिए कि आपको वह काटेगा नहीं। मेरा बड़ा अच्छा पप्पू, मेरा बड़ा अच्छा पप्पू, nice snake, good boy, snake, good boy, nice skin you got, snake. Bye bye snake. Bye bye snake. So you have to discern in people. Like I have met many rich people, no harm, but I have not met as many people who have value. I want to meet such people of value. आपको लोगों में फर्क करने आना चाहिए। मैं बहुत अमीर लोगों से मिला हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत ही कम लोगों से मिला हूँ जिनके अंदर मूल्य होते हैं, और मैं ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के से मिलना पसंद करूंगा। You know, sometimes I feel sad. You know, I eavesdrop on young people's conversation. जो मोटरसाइकिल पे घूमते ना बिना हेलमेट के, बहुत सारे लोग। Their conversation from my bike ride from one signal to the other signal to the third signal to the fourth signal is all the same. They start with an abuse, then take the name of the other person. पहले गाली निकालेंगे, फिर बोलेंगे हाँ भाई परमजीत, तो दोनों में से कौन सा नाम परमजीत है? The thing is, what will you expect of 4 units of youngsters having the same conversation which doesn't mean anything? लेकिन उन 4 युवकों से आप क्या अपेक्षा रखेंगे जो बातें तो कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ मूल्य नहीं या मतलब नहीं है। Proverbs 27:17. नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। जैसे लोहा लोहे
देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। ब्यूटीफुल। कुछ तो यार क्या बोलते हैं मुंबई में, कुछ तो शाइनिंग आया किसी को मिलने के बाद। You meet somebody, you sharpen him a bit as iron sharpens iron. अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको वैसे ही चमका दीजिए जैसे लोहा लोहे को चमकाता है। अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है तो आपका जो दोस्त है वो सच्ची में दोस्त है। आप सपोज एक शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट करे तो कहेगा 5 मिनट और मारना। अगर आप भागे 1 मील तो बोलता है ना चल मैं तेरे साथ 500 मीटर और भागता हूं। क्या कर रहे हैं? तो शार्पनिंग ईच अदर। अगर आपका मित्र सच्चा है तो अगर आप कोई क्रीड़ा खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो वो आपके साथ दौड़ेगा, कहेगा चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। वह असल में क्या कर रहा है? वह आपको चमका रहा है, शार्पनिंग, तेज कर रहा है। समझ रहे हैं? कुछ आप राइटर है, कुछ स्पॉट नहीं आ रहा, कुछ थॉट नहीं आ रहा, कुछ थॉट नहीं आ रहा, छोड़ना है यार। नहीं नहीं, जब कॉफी शॉप में चलते तू भी कुछ लिख मैं भी कुछ लिखता हूँ, कुछ ना कुछ आ जाता है। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ आ जाता है। अभी अगर कोई आदमी आपका दोस्त गलत कर रहा है, सपोज गलत कर रहा है, सपोज ड्रग्स में जा रहा है, तो अगर आप उसको नहीं बोलते हैं गलत है तो आप उससे दोस्त नहीं। मैं उसको कैसे बोलूं? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलता हूं उससे बोल। तेरा लड़का तेरा भाई कोकेन क्रैक पे चला जाता तो तू उसको बंद कर देता रूम में। इधर तू थोड़ा मजा ले रहा है, क्या होएगा इसका? हैं? शाना है। दोस्त वो है कि जब पता चलता है कि कोई गलत जा रहा है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है तेरे को वो बोलेगा कल मेरे को तेरे से नहीं लेना, बस एक दिन याद करेगा, एक दिन याद करेगा। I told Uncle something about 10 years ago, and he told me it doesn't apply. After 7 years ago, after 7 years he came to me and told me when nobody else was there, Dad, you were right. समझ रहे? तो बात अच्छी भी बुरी लग सकती है, अच्छी बात बुरी लग सकती है, लेकिन अच्छी बात बोलना चाहिए। किसी को आप सही जगह पे रख सकते हैं, ये नहीं कि आप उसको गोद ले लीजिए, ये नहीं बोलता हूं मैं, because that is not, he is above 18, he can take his own decision, but definitely sharpen each other. Sometimes just be silly, जैसे मैंने Facebook पे लिखा था, but seek wisdom उसके बाद में लिखा। You can be silly with friends, you can laugh with friends, you can have a very laugh with friends, but is the friendship going forward? Is it stationary? It is backward? Is the business going forward? Is your job going forward? Is your career going forward? I just read a post on my school group. I will not tell you the year, very mercy. But 3 people were given. One did this, had some bad habits, was this, second thing was given, and third was a vegetarian, and he was this, the third turned out to be Hitler. And the 2 with bad habits turned out to be very, very big figures. So it takes time to know character. What I wear will not tell you how I am. A little bit will tell you, but it will not tell you everything. Tell you what I like, what colors I like, but to know a person, you got to walk with that person, literally. चरित्र को समझने के लिए समय लगता है। मैं क्या पहनता हूँ या खाता हूँ उससे आप मेरा चरित्र नहीं जान सकते। उसके लिए आपको समय लगेगा, उसके लिए उस इंसान के साथ आपको चलना पड़ेगा। ऐसा एक 5 में से 5 लोग जो आपके आसपास हैं, ये क्वालिटी वाला होना चाहिए जिसको आप शामिल करते हैं और आपको वो शामिल करते हैं। और सबसे डीप फ्रेंडशिप कब होती है? जब दोनों चुप बैठ सकते। लिटिल नॉट पॉसिबल विद द लेडीज, बट ताई जी यहाँ खाना खाने जाता है,
2 घंटे पर बैठा मैंने एक सेंटेंस नहीं बोला क्योंकि मौका ही मिला बोलने की और वो लगी रही अपना। एंड में ताई ने बोला मेरे को, आप बहुत कम बोलते हैं। मैंने कहा जी मौका मिले तो बोले आदमी। कोई समझ नहीं आ रहा, दो लेडीज बात कर रही, दोनों एक टाइम पे बात करें, कैसे प्रोसेस हो रही है? तो हमारे से ज्यादा इंटेलेक्ट है, बहुत ज्यादा। That's a skill, she said. For us it is a drill. अभी मैं बोलता हूं, you will seek what you find. What you seek, you will find. जो भी आप ढूंढेंगे आपको वही मिलेगा। Seek goodness. तो इसलिए अच्छाई ढूंढिए। 2 Kings 2:2 पढ़ो। दो राजा उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा है। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। Elijah is a prophet, he was an anointed man of signs, wonders and miracles. एलिय्याह एक व्यक्ति थे जिनको अभिषेक था कि चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा हुआ करते थे। He was a prophet, he was a man who moved in the spirit of God and moved in signs, wonders and miracles. वह एक भविष्य वक्ता थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते रहते थे। Elisha found him. एलीशा को एक दिन वह मिल गए। He knew this man has something that I don't have. तो एलीशा को पता चल गया कि इस व्यक्ति में ऐसा कुछ खास है जो मुझ में नहीं है। What did Elisha do? तो एलीशा ने क्या किया? He spent his time with him learning. उसने अपना समय उनके साथ व्यतीत किया कुछ सीखने के लिए। He told him to go another place. He was younger. He said, as I live, I will not leave. एलिय्याह ने कहा कि तुम जाओ किसी और दूसरे स्थान पर, तो उसने कहा कि नहीं, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं आपको छोड़कर जाऊंगा नहीं। This is one friend you should have amongst the five. Second friend who you know blesses you. You can learn from, you can keep quiet and you can hear it. He will hear you, you know, and you know you're getting something good from him, something godly for him. And Elijah, where this Elisha knew that he had something he doesn't have, he never left his side. And Elijah is one of the few people in the Bible who did not see that. He was taken up in a chariot and he did not leave him. Then also he was telling him, go, go. He said, unless you bless me, I will not go. And then Elijah dropped the sign, wonder, miracle, mantle upon him. Oh! दूसरा व्यक्ति जो आपके मित्रों की सूची में होना चाहिए वह ऐसा ही होना चाहिए, जिससे आपको सीखे, जिसके साथ आप चुप रह सके, बात कर सके, जो आपको समझता हो और जो आपके में कुछ इजाफा करे। एलीशा एक ऐसे व्यक्ति थे बाइबल में जिन्होंने एलिय्याह के साथ ऐसी ही मित्रता रखी क्योंकि वो उससे सीख सकते थे और अंतिम समय तक उनको छोड़ा नहीं। वह एक ऐसे व्यक्ति है जिनको मृत्यु कभी आई नहीं, उनको जीवित उठा लिया गया। और उस वक्त भी एलीशा ने एलिय्याह का साथ नहीं छोड़ा कि जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब जाते जाते एलिय्याह ने अपना वस्त्र उसको दे दिया जिसमें उनका परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ। These are the kind of people you should not let go. Don't get offended. They might correct you sometimes, they might be rude to you sometimes, but don't let them go. These are solid people. ऐसे लोगों को आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कई बार वो आपको थोड़ा कुछ बोल दें या फिर आपको सही करने की कोशिश करें, लेकिन अन्यथा वो बहुत ही परिपक्व किस्म के लोग होते हैं, उनसे आपको बहुत इजाफा हो सकता है, इसलिए उनको कभी अपने जीवन में दूर मत जाने दीजिए। When I travel winters for crusades, I am a very shawl person because I am from a small town, and how the shawl keeps you warm, nothing else can. Believe me. So I pick up shawls. लोग दे देते हैं मेरे को, ठंड लगती है मेरे को shawl दे देता है. And the wise people are, I wear that whole shawl for a week or something, and on the 7th day, that person comes to me and say, there is a new shawl for you, can I have this shawl? Very wise person that is.
They give me a better, more expensive shawl than that, but she knows, he knows, there is something in the shawl which is not there in the new shawl. मैं कई बार जब परमेश्वर की महासभाओं में जाता हूँ ठंडियों में, अक्सर मुझे शॉल का बहुत शौक है, तो मुझे कई लोग प्रेम से दे देते हैं और 7वें दिन अक्सर जो लोग समझदार होते हैं वो मुझे एक नई शॉल जो और अधिक महंगी और अच्छी होती है देकर चले जाते हैं, प्रेम से मांगते हैं कि क्या मुझे पुरानी वापस मिलेगी, क्योंकि उनको यह पता होता है कि जो मैंने इस्तेमाल की है उस शॉल में ऐसा तो कुछ है जो इस नई शॉल में नहीं है। Anointing, especially when you are doing God's work, whatever touches that man, the anointing goes into it. जब आप परमेश्वर का कार्य कर रहे होते हैं तो जो अभिषेक आप में होता है वह हर उस चीज में चला जाता है जिस वस्तु के संपर्क में वह इंसान आता है। So when you getting a good thing, don't leave it. इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा जीवन में मिल रहा हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। Sylvester Stallone, Rocky, was rejected. The script was his. Script many people were willing to buy, but nobody wanted to take him as a hero. The rest is history. रॉकी पिक्चर के जो अभिनेता थे सिल्वेस्टर, कई लोग उस स्क्रिप्ट को पसंद नहीं करते थे, पसंद करते थे, स्क्रिप्ट ले लेना चाहते थे, उसको हीरो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उसने स्क्रिप्ट नहीं बेची जब तक किसी ने नहीं लिया, जब तक उसका फाइनेंस इकट्ठा नहीं हुआ। और अभी रॉकी कितनी बन चुकी है? 7 मेरे घर बन चुकी है, और हम 25वीं 26वीं भी देखेंगे, बाकी कितने फ्रेंचाइज बन चुके हैं, because he believed in himself, he believed in what he had written, he believed he could play Rocky, and Rocky he did play, and he played it very well. क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि उन्होंने लिखा है तो वह उसके अभिनेता हो सकते हैं, बहुत अच्छे से उस रोल को निभा सकते हैं। उन्होंने वो विश्वास कभी नहीं छोड़ा, अपनी स्क्रिप्ट किसी को बेची नहीं जब तक उनको अभिनेता के तौर पर नहीं लिया गया, और फिर उन्होंने इतिहास रचा। If he had not acted in this film, he would have got some easy amount of his first script, and you would have never known who Sylvester Stallone. अगर उन्होंने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट बेच दी होती तो हो सकता है उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाते, लेकिन सिल्वेस्टर कौन है आपको कभी पता नहीं चल पाता। If you have something of value, wait. अगर आपके अंदर कोई मूल्यवान चीज है या कोई प्रतिभा है तो इंतजार कीजिए। God will make the right unit. परमेश्वर आपको सही संगति में जरूर भेज देगा, And you'll be a star. और आप भी एक स्टार बन जाएंगे। Proverbs 13:20. नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। Learn to be quiet around wise people. People who are wise, they don't wait to give their wisdom to everybody. A person who has actually something will not show it off. Believe me. बुद्धिमानों की संगति में या उनके इर्द गिर्द शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह ऐसे लोग नहीं होते जो अपना ज्ञान बांटते फिरेंगे, वो चुपचाप रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। उनमें से निकालना पड़ता है। That is also wisdom. A person wins a lottery, he buys a beautiful car, anybody who will come in to his house, he will say, see my car. And I'm telling you, Tata will not do the same. You have to draw out Mr. Ratan Tata and show him your love of cars and show him the knowledgeability of cars. You show him, then say, I've got a nice thing to show you. Then tell you what. बुद्धिमान लोगों के अंदर से ज्ञान, आपको बातें और ज्ञान निकालना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति है जिसको लॉटरी लग जाए तो वह बहुत ही आसानी से आपको अपनी कार दिखा देगा दिखावा करने के लिए, लेकिन रतन टाटा से अगर आपको कोई ज्ञान का चीज सीखना है तो आपको कारों में कोई बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए, और आप उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे तब आपको जरूर कहेंगे कि हाँ आइए मेरे पास आपके लिए एक अच्छी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हर एक को जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कभी ना कभी जिंदगी में एक आदमी ऐसा मिला है जो बोलता है मुझे सब पता है। देखिए मैं भाई साहब ने ऐसे इतने जोर जोर से नॉट किया विद अ नाइस बियर्ड। Everybody is met this idiot who knows everything. हम सबको अपने जीवन में एक मूर्ख ऐसा
discard him. सबसे पहली बात कि उसको अपने आप से दूर कीजिए Or tell him talk to my hand. हाँ, या फिर उसको कहिए कि मेरे हाथ से बात करो। वो था ना टीवी में एक ऐसा आता था ना बीच में, there was something like that. हाँ, तो walk with the wise, walk with the fit, walk with people who play a game. Generally मैंने देखा है, तो आदमी कुछ खेलते हैं, करते हैं ना, वो बहुत बुरे नहीं। एक होता है बुरा, जो हारने में तो बहुत चिढ़ता है, चिढ़ते सब हैं, लेकिन वो उसका तो गेम और खराब हो जाता है, होता रहेगा। तो जमता है ना भिड़ू, हाँ अपना भिड़ू है। तो प्रोवर्ब 27:9, प्रोवर्ब थोड़ा ये बड़ा उसमें बहुत विजडम। ये एक ऐसा आदमी ने किताब लिखी है, जब प्रभु ने पूछा तेरे को पूरी दुनिया में क्या चाहिए, तो उसने कहा प्रभु मुझे विजडम दे। सुलेमान नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। You should feel blessed when you meet a friend. आपको आशीषित महसूस होना चाहिए जब आप किसी मित्र से मिलते हैं। When somebody meets you, he or she should feel blessed. या कोई आपसे मिले तो उसको भी आशीषित और अच्छा महसूस होना चाहिए। Every person has met a person. When he's coming across this road, he just want to go to the other side. Everybody. हम में से हर एक ऐसे इंसान से अवश्य मिला होगा कि अगर वो सामने से आ रहा हो तो आप दूसरा रास्ता पकड़कर निकलना चाहेंगे। और suddenly something happens to eye. आपकी आंख में कुछ कचरा चला जाएगा। ऐसे करके अपना निकल। लगा ये 45 मिनट्स मेरे बर्बाद कर देगा ये इंसान। मैंने तो कभी कोई तस्मा भी माना, झुक के नीचे सर झुका के ऐसा तस्मा बना जैसे पिकासो की पेंटिंग बना रहा हूं, ये निकल जाए बस। सबको मिला ऐसा आदमी के नहीं, हाथ उठाओ, मिला है ना? और कोई आदमी ऐसा है जिसको आप दूसरी साइड पे हैं, जब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप दूसरी साइड में, आप उनकी साइड में जाके उनको पकड़ लें। उसको ले आइए 5 लोगों में, उसको ले आइए 5 लोगों में। एक के साथ में वॉक करता था, उसको पता नहीं क्या परेशानी थी मेरे से। नायर साहब और मैंने बहुत वॉक करी है, सुनील और मैंने वैसे चलता रहता था, फिर सडनली रुक के मेरे कंधे पे मारता। मेरे को एक बात बताओ, पैसा किसी नहीं चाहिए, पैसा किसी नहीं चाहिए, पैसा मोटे में ही मारता है। मतलब वो वॉक में एक चक्कर में 3 बार मेरे को पैसे किसी नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसी बात करता, मैंने तेरी शादी हुई? कहता नहीं। मैं कहा तेरे पैसा है? नहीं। मैंने कहा तेरा ये है तो जॉब है, जो भी मैं करता हूँ बकवास हो जाता है। मैंने कहा ये बोलना बंद कर दे, पैसा किसी नहीं चाहिए, ठीक हो जाएगा। So the thing is, one, we sharpen each other. Second is good company. Third is you feel blessed. Your soul feels refreshed, and you are on a better level after meeting that person. These are the kind of people you should have amongst the 5 people that you deal with. तो अगर पहला मैंने बताया कि अगर आप एक दूसरे को तेज करते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ अच्छा उसमें जोड़ते हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, सम्मान देते हैं, और तीसरा कि आपका हृदय खुश रहता है, आपको अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। अगर इस तरह के लोग आपके जीवन में हैं, तो आपके मित्रों की सूची में उनको होना चाहिए। You see,
Proverbs 17:17. What is a friend? Friends know stuff about each other. That is a friend. They know your good stuff. They know your bad stuff. And if the friend is wrong, he will use the bad stuff. If the friend is right, he will try and take the bad stuff. So friends can be very dangerous. People you meet every day, they come to know about you. What do you like to eat? What do you like to dress? What are they? Where your eyes go? Everything they see. Right, Anand? नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। Loyalty in small things. A loyal person is a better person than a flattering person. A loyal person. ईमानदारी हर चीज में एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही उत्तम व्यक्ति है, उससे जो दिन भर आपकी चापलूसी करता हो या फिर आपके बारे में अच्छा ही बोलता हो। I had a friend, very old friend, I won't take his name, but I got into some trouble. And then I had to give an examination. I had flunked chemistry. Never one of my favorite subjects. So I had to compartment बोलते थे उस time पे, तो मेरे को देना था. And if I didn't give it, I'd lose a year. So those people were looking after me to nicely beat me up. And that friend of mine, because he knew if I would miss my examination, said he was I. That's right. मेरा एक बहुत पुराना मित्र थे। मैंने एक समय जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे केमिस्ट्री में मैंने उसकी परीक्षा नहीं दी थी और मेरा कुछ कम नंबर आया था, तो मुझे फिर से देना था। तो कई लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मुझसे काफी खफा थे या नाराज थे। तो वह जो मेरा मित्र था उसने ऐसा दिखावा किया कि वह मैं हूँ। इसको बोलते हैं एक ईमानदार मित्र। You know, I have had so many unloyal experiences in my 20-year walk with the Lord, which I want to share with all of you, so that you don't have. I never looked for these things, loyalty, people in front of a person who has some authority are very different behind their backs. अगर किसी के पास कोई ताकत है या एक उसकी चलती है तो उसके सामने कई बार लोग कुछ एक अलग रूप से होते हैं जैसे कि उसके पीछे होंगे। मैंने यहाँ बहुत बार बोला है कि कोई जो नया आता है उसका कोई क्वेश्चन है तो किसके पास आओ, मेरे पास, मोदी जी के पास आओ, मेरे पास। इवेंचुअली आप आओगे मेरे पास, पर तब तक प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। इवेंचुअली आना ही पड़ेगा कि पास्टर को डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, नहीं पास्टर का काम है। और फिर क्या होगा कि आप सजेशन किसी से लेंगे और कईयों के दिलों में लीडर बनने का शौक होता है और उनको अगर मिल जाए कोई पकड़ में जो मेरी सुनेगा तो पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं उसको दबोच लेते हैं। ये क्या है, ये निकालो, ये क्या है, ये निकालो। मैंने तो नहीं बोला, उसको जो निकालना नहीं निकालना वो वचन सिखाएगा उसे, तू मत सिखा, मत निकाल देते। लेकिन वो दबोच ये सुनेगा नहीं, इसको मैं डिसाइबल करूंगा, मैं पॉल हूं, ये पीटर है, तिमोथी है, मैं बॉस हूं। हाँ आ जाओ बच्चा, वो बच्चे की रेड़ मारो। ऐसा नहीं करनी, क्या उतारना है क्या पहनना है वो वचन के द्वारा आपको पता लग जाएगा। बड़ी अच्छी तरह पता लग जाएगा। लग गया ना पता? कोई मैंने बोला कुछ, नबी ने बोला, मैंने तो बोला निक्कर पहन के आओ। मोदी जी मुझे निक्कर खरीदने नहीं देते। I will revolt, I will get my निक्कर। I don't know why she calls it jaggery wax. तो मैं निक्कर ले रहा हूँ। तो friends know more about you than you imagine. आपके मित्रों को जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा आपके बारे में पता होता है। दो साथ में सो गए क्रूसेड में,
तो दूसरे दिन एक दूसरे को बोलता है ये सीमा कौन है भाई? वो नींद में बोल रहा है सीमा सीमा। एक और बात पता चल गई उसको, तेरे को कैसे मालूम? भूलिएगा नहीं। So we friends understand this. Where I converge to, this all will matter what I'm saying. तो आपको अपने मित्रों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जहाँ मेरा संदेश एक तरफ जाएगा वहाँ आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। Your friend should be like, even if he hears you speak, talking in the night about Seema, he won't tell it to anybody else. आपका मित्र ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके मुंह से इसकी बात सुन भी ले तो उसको दूसरों को नहीं जाकर बताए। इंदु राकेश जी, सुरजीत जी, वैन बाबरा जी, सतवंत सिंह जी, सबका स्वागत है जी। जुड़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सबका स्वागत है। घूम जाओ भाई। तो अनिश कुमार जी, सुमन गुप्ता जी, दीपा जी, सोफिया जी, अमजद खान जी, सबका स्वागत है। So, what I'm saying, a friend knows more about anything. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका मित्र आपके बारे में बहुत जानता है जितना आपको स्वयं को नहीं पता होता। If he's a gossip, he'll cause you harm. अगर वह चुगली करने वाला इंसान है तो वो आपके साथ फिर बुरा कर सकता है। If he is a rabble rouser, he will just to get some attention talk about a person in authority. अगर वह ध्यान केंद्रित करने वाला मनुष्य है तो फिर जिसके पास कोई शक्ति या ताकत होगी वो उसके पास जाकर ये बातें बोलेगा ताकि उसके ऊपर एक ध्यान जाए। He will not be good for your reputation. और वह आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। So before you call somebody a friend, make sure that he is a friend. तो अपना मित्र अगर आप किसी को कह रहे हैं तो उसके पहले आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि वह सच में आपका मित्र है। The best way to choose that is tell somebody to attack you with a sword and keep that friend with you. You will immediately know how fast he runs. He'll beat Milkha Singh's record. Then he'll give excuses. A person who is with you in trouble is a friend. A person who understands that I also make mistakes, he also mistakes is a friend. A person who is loyal is a friend. Who taps your wrist and tell you छोड़ना है क्या कर रहा है तो बहुत बड़ा। A person who is a friend. What is a friend? मोहित जी ने शुरू में बोला था something about friend when I came in. Are you my friend? You said something about friendship today. कुछ बोला था। Who is a friend? You said Jesus is a friend. क्या कोई देखो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आदमी है। तो ऐसे लोग जो हमारे साथ रहते हैं क्वालिटीज वाले, तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट बनता है, बड़ा सॉलिड यूनिट बनता है और हम सक्सेस होते हैं। यही करते हैं। वो तो अभी बोल चुका हूं, हम बोल चुके हैं। तो अभी आप ये देखिए 1 John 15:14-16। बड़ा इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, निकालो कोई। I have not called Jesus. I have called you friends. क्या Jesus बोल रहे हैं हमारे को? क्या है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 14वीं से John 16वीं 15:14-16 जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। You understand this? Jesus is saying me, you are my friend if you do what I told you to do. So I have told you my business. What I am all about, I have told you. Friends know about each other. आगे
अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। एक मिनट। A friend should be somebody you can tell your secrets to. You can confide in him. You can tell him about your business. You should not tell what you do to everybody. No need. No need. You should tell. You can tell a friend that these are my house keys. I'm going to Pune. Please stay in my house. That is a friend. A friend knows your business. You know your friend's business. He knows your weaknesses. He knows your strengths. And vice versa. Remember that always. एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपके बारे में हर बात जानता है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिससे आप अपनी हर बात बता सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ आप बने रहते हैं और भरोसा कर सकते हैं। Letting a wrong person know your business and your intimate things is a very, very immature thing to do. किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी रहस्य भरी बातें बता देना है, अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता देना, जो उतना ईमानदार नहीं है आपके रहस्यों को लेकर, वह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण चीज है। So when you call somebody a friend, is he capable of handling all that you are? तो जब आप किसी को अपना मित्र कह रहे हैं, तो क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जैसे भी हैं वो आपको पूरी तरह से अपना सके? Some people have nobody to talk and they talk anything to anybody. कुछ लोगों के पास कोई मित्र नहीं होते कि उनसे वो बात कर सके, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी बात करते हैं। Should not do that. ऐसा नहीं करना चाहिए। Thessalonians 5:11, last scripture. थिस्सलुनीकियों की पहली पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। That is a relationship. एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना is success. Raise up people. Tell them to do what you know. Make them better. You'll find somebody else doing the same to you. And the 5 people around you will be solid people in Jesus' name. लोगों को ऊर्जा उठाइए, आप उस चीज को बांटिए, उनको सिखाइए, उनको अच्छा बनाइए, उनके जीवन को बेहतर बनाइए। आपको भी अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको ऊपर उठाएगा और आपको अच्छा बनाएगा। और आपके जो 5 मित्र होने चाहिए, बहुत आपके करीब ऐसे ही होने चाहिए, जो आपके जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा करें और आपको ऊपर उठाएं। 10 साल से एक लेडी से मैं रेसिपी पूछ रहा हूँ, 10 साल से। वो हर बार बोलती है मैं बना के भेज दूंगी, मुझे रेसिपी आज तक नहीं पता। दे दो रेसिपी यार, दे दो उनको बढ़ा दो, दे दो कैसे टंकी में कैसे बोलते, साइड मंडल में कैसे होते, पूछो मेरे को, मैं बता दूंगा तुम्हारे को कैसे होते हैं। ओरेशन कैसे होती है वो मैं सीख के नहीं आया, सब होली स्पिरिट द्वारा होती है। मैं कोई ओरेटर नहीं रहा। क्या है सब बताओ। What is the miracle? What is the sign? What is the wonder? कैसे ठीक होती है? ब्लाइंडनेस कैसे चली जाती है? जब मैं जो बोलता हूँ आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होता है, वहां पे होली स्पिरिट आती है और आंख खुल जाती है। ये मिरेकल। When my words connect with your spirit and the spark goes off, that is a miracle. When I believe there is a stripe for you which healed you, when I open it upon you, your cancer goes away. That's how miracle happens. जब मैं आपसे भी बोलता हूँ और आपकी आत्मा के साथ बस जुड़ता है और आपके अंदर एक रोशनी आती है, तब चमत्कार होते हैं। जब मुझे पता होता है कि आपके लिए एक कोड़ा रखा हुआ है चंगा करने के लिए और मैं उसे आपके सामने खोलकर विश्वास से आपके ऊपर लागू करता हूँ, तब आप चंगे हो जाते हो और तब आपके जीवन में चमत्कार होता है।
take out the plug, these lights will go off. Off they will go. No. It's to get plugged into the Spirit of God. That's a miracle. That's a miracle. It's to understand कि मैं गरीब हूँ, लेकिन बाइबल बोलती है मैं तुझे नफा करना सिखाऊंगा, पर तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये दो चीज साथ में जाती है। मैं तुझे नफा सिखाऊंगा और ऐसा नफा सिखाऊंगा। I am not a billionaire, I am not a millionaire, but I have no lack, and this 20 years the Lord has provided. So the thing is, you know, sometimes people ask me, I am a believer and I love Jesus, but my ailment is not going. And I brought a neighbor with me who had cancer at the last stage. He got healed. Why? कई बार मुझे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि वह विश्वासी होते हैं, बहुत सालों से प्रभु को जानते हैं, उनको कोई तकलीफ है पर नहीं जा रही, तो मुझसे पूछते हैं कि मेरे साथ एक पड़ोसी आया, उसका कैंसर ठीक हो गया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हुई? Sometimes knowing something gives you an ego. कई बार कुछ जानने की वजह से आपके अंदर एक घमंड आ जाता है। You think this is the way the Lord is going to do it. आपको लगता है इसी तरीके से परमेश्वर इसको करने वाला है। You are guiding God to heal you. और आप परमेश्वर को सिखा रहे हैं कि आपको चंगाएंगे। And when Jesus was asked, who will enter the kingdom of God? He said, Ahan and children will enter the kingdom of God. You know, I always say, one of my quotes is, never lose the child in you. The person who's come for the first time, he gets into the awe of God. And he comes like a child and his cancer disappears. आप परमेश्वर को सिखा नहीं सकते। परमेश्वर ने बोला, जब उनको पूछा गया कि कौन स्वर्ग में जाएगा, तो परमेश्वर ने कहा कि जिसका हृदय बच्चों सा होगा, मन वही जाएगा। इसलिए कई बार नए लोग आते हैं, वो परमेश्वर से बहुत ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बच्चा होता है और उसी बच्चे के विश्वास से उनको चंगाई मिल जाती है। They've never seen anything like this. They don't know anything like this. As they see miracles happening opposite them, their heart is bursting with hope, bursting with joy. Oh, this happens. There is actually a God. I am not alone. And the cancer goes. जब वो पहली बार आते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वो चमत्कार अपने आसपास होते हुए देखते हैं और उनका मन खुशी से और विश्वास से भर जाता है कि अरे हाँ, सच में कोई परमेश्वर है जो चंगा कर रहा है। और यही जो बच्चे का विश्वास होता है, उनको चंगाई देता है और उनके कैंसर को ही। They do not have layers of preconceived thought. That is how you should be 20 years later, like you should be 40 years later. I am still a child in Jesus. That is my great. और आपको ऐसा विचार रखना चाहिए कि जैसे मैं 20 साल पहले परमेश्वर में था, अगर 40 साल भी रह लूं तो भी मैं वैसा हूँ, बच्चे जैसा ही आपका मन होना चाहिए, और तब आप प्रभु को पालेंगे। Anytime I feel God is going to do something, speak to me. I am a child. हर बार जब मुझको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ करने वाले हैं, मुझसे कुछ बात करेंगे, तो मैं बच्चा बन जाता हूँ। What is the greatest quality of a child? He learns. He's like a sponge. और सबसे बड़ी खूबी एक बच्चे की क्या होती है? वह एक स्पंज जैसा होता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। After you learn a few things, you say, पढ़िए किताब पढ़िए, मैं जानता हूँ ये जानता हूँ, सब पता है यार, सब पता है, इश्क़ वही तो तेरे को पता लगना बंद हो गया। प्रभु तुझे कितना और सिखाना चाहता है, कितना और बोलना चाहता है, पता है यार। तो कहां चला गया? Back to zero. This happens a lot of times spiritually. A lot of times this happens spiritually. You stop growing because you think you know too much. You never know too much. You still haven't seen an ant turning into an elephant. God will show you that also if you're a child. And an elephant turning into an ant, a mountain turning into water, stone turning into water. In Jammu I saw hearts of stone turning into water. First day I went, they were mocking me. What is he talking? ऐसा थोड़ी ना होता है. And then one man paralyzed for 3 years got up and walked. Then what happened?
The one who was making fun of me wanted to get hold of my coat. Somebody my behind, somebody my jacket, somebody my that. What happened? First, stone. Second day, Jammu, water came off the stone. The third day, it was the season, Jesus' sea. Everybody was water and putty in Jesus' hands. In Jammu, they were taking their stretchers and wheelchairs and doing bhangra on the streets of Jammu. That is a miracle. He changes the heart of stone to the heart of flesh first before he heals you. कई बार आत्मिक रूप से हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमको लगता है थोड़ा सा सीख कर कि हमको बहुत आता है, आपको कभी भी बहुत नहीं आ सकता। परमेश्वर एक चींटी को हाथी बना सकता है और एक हाथी को चींटी बना सकता है, अगर आप बच्चे का मन रखकर उससे यह सीखना चाहते हैं। वो पत्थर के दिल को पानी बना सकता है, जैसा जम्मू में उसने किया। जब मैं पहले दिन वहां पर गया तो लोगों को विश्वास नहीं था, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब अपाहिजों को उन्होंने चलते हुए देखा, चमत्कार देखे, तो तीसरे दिन तक हर कोई मुझे छूना चाहता था, कोई मेरे कोट को, कोई मेरे हाथ को, क्योंकि पहले दिन वहां पर लोगों का दिल पत्थर का था। लेकिन तीसरा दिन आते आते परमेश्वर ने वहां पर यीशु की नदी बहा दी। Some people after 20 years in the Lord, their hearts turns from flesh to stone again. That is when they stop coming. That is when they think they do too much. They think churches are shops to go and shop over there. No! Elijah and then got the anointing. If you know the person is right, stick by him, you will be blessed. Because blessings in that person are not natural but supernatural. They pour out of that person. They pour out of the person wherever he goes. कई लोगों को मैंने देखा है जो 20 साल बाद जिनका एक नरम दिल फिर से पत्थर बन जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है। और वही समय होता है जब वह मिलना जुलना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उसको दुकान समझते हैं कि वह कुछ खरीदने चले जाएंगे या अपने मतलब से। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे एलीशा थे, उनको पता था कि एलिया में बहुत सामर्थ और अभिषेक है, और अंतिम समय तक उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस इंसान के अंदर अभिषेक है वो उसके बाहर छलकता रहेगा, छलकता रहेगा। और अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और आप उसको पहचानते हैं और उसको कभी नहीं छोड़ने वाले, तो वह सामर्थ और अभिषेक आपके जीवन में आएगा। Where is your loyalty? You've been blessed by that person for 20 years. Your family has been blessed. Your finances have been blessed. And now you think, no, you don't. There's lots to learn, suitcases to learn, truckloads to learn, which you will not learn anymore because you think you know better. Remain a child. Everybody is watching me. People who are here, keep that child alive in you. There is something more I can still teach you. God bless you. Bye-bye. उस इंसान ने आपको सिखाया, आपका परिवार आशीषित रहा, लेकिन उसके बाद आपकी ईमानदारी कहाँ गई? क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। नहीं, आप बहुत ज्यादा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा और है जो परमेश्वर आपको सिखा सकता है, लेकिन अब वह आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि आपके अंदर घमंड आ चुका है कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, और तब आपकी जो आत्मिक बढ़त है वह रुक जाती है। Last thing I say before we go off the net is this. That now the 5 people around Power of Love people, or more, 10, 20, 100, lakh, but 5. Generally, it's I think the core group should be 5 to 12 people. 12 people is ideal. 12 people. And these 12 people, God will give us, हमारे को देगा प्रभु, और वो लोग जो होंगे प्रभु, वो उनमें लॉयल्टी होगी प्रभु, एक दूसरे को शार्पन करेंगे प्रभु, एक दूसरे को एलिवेट करेंगे, किसी भी चीज को पहले से अच्छा छोड़ के जाएंगे, और प्रभु मजे करेंगे, मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, और एक दूसरे के साथ कंप्लीटली लॉयल होंगे प्रभु, एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे, जब करेक्ट करना होगा तो करेक्ट करेंगे, और अगर गुस्सा भी करना हो तो गुस्सा करेंगे प्रभु, आदमी को गलत राह पे नहीं जाने देंगे। और ये लोग मिलके हर जगह, बिजनेस हो, जॉब्स हो, कुछ भी जगह हो, चर्च हो, ये हर चीज को ऊपर उठाएंगे यीशु मसीह। आमीन।